Hello everyone, welcome back to my channel. So today I want to discuss about something that I believe we don't often discuss enough. That is the cost of living independently. So if you know me, आप लोगों को पता है that I've been living alone due to my job, and even before that, college की वजह से, or there have been times when I was doing internships and stuff. Also at that point I was living alone. So अभी बहुत साल हो गए हैं and I love my freedom and I love living independently, but like everything, it has its own pros and cons. So most of you, when you see me, my content, you see कि ठीक है, मतलब wow, she's living her life and it's so great to see her. She gets to do everything she wants. Of course I do, but there are times where I actually miss my friends, I actually miss my family, I miss my sister, I miss my parents, because it's not easy to live alone. And this is something we'll discuss about, and I just want to tell you, this is such a reality check, I'll tell you, because I know आप लोगों में से भी बहुत सारे भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी स्कूल में हैं. सो व्हेन यू विल गो आउट फॉर योर कॉलेज और फॉर योर जॉब, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी अकेले रहना होगा. एंड देयर इज सो मच टू लर्न व्हेन यू आर लिविंग इंडिपेंडेंटली, which I literally admire, but it comes with challenges that you have never ever faced before. And वो बहुत ही basic चीज़ें होंगी, and you will feel like oh my god, and you will cry. आपको पता भी नहीं चलेगा, there will be no one to help you, and it is such a natural thing, and it is something which I actually like. But उस moment में I feel so frustrated and I just feel कि यार ये क्यों हो रहा है, why am I like this, why am I living like this, because I see my friends living with their family, I see my friends living in the cities जहाँ उनका घर है. And you know, especially the fact कि like me, if I have to give you my example, ठीक है, I'm living somewhere where I actually don't have any friends. Like I do have colleagues, great colleagues, and they are actually my friends, but there's a difference. एक तो because I'm a Gen Z, ठीक है, and there's a big age gap between us, and उसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इफ़ आई वांट टू गो आउट, डू शॉपिंग, डू पार्टी, उनकी प्रायोरिटीज अब चेंज हो चुकी है. लाइक एवरी एज, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस कि वो अपना टाइम, अपनी छुट्टियाँ कैसे काटना चाह रहे हैं. ठीक है, सो अगर मैं किसी शाम को जाना चाहती हूँ एंड आई वांट अ फ्रेंड के साथ मैं एक्चुअली जा सकूँ, आई डोंट हैव दैम. ठीक है, मेरे पे यहाँ वो नहीं है. एंड उसके बाद फिर टॉकिंग अबाउट, अगर घर की बात करूँ तो वो तो ऑब्वियसली लाइक घर पे आके आपको खाना मिलता है, पानी मिलता है. नाउ व्हेन आई कम बैक, मेरे को घर एक मेसी स्टेट में मिलता है. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वन, मेरे पीछे कोई काम करने नहीं आ रहा है. ठीक है, मॉर्निंग में आई हैव अ कुक, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं इतना ज़्यादा खाना हर टाइम पे खुद नहीं बना सकती हूँ. ठीक है, एंड टू डू वर्क, टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स इज नॉट समथिंग वेरी ईजी. मैं बर्तन धो लूँगी, पर मैं हर बार खाना नहीं बना पाऊँगी. हर बार झाड़ू पोछा चीज़ें संभालना, इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने. एक घर में अगर आप रह रहे हो, छोटा सा ये माए, आई हैव अ 1 BHK, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत बड़ा घर संभालना है. बट यार, चीज़ें अगर आपको ऑर्गेनाइज देखना पसंद है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड आई डोंट थिंक आई हैव इनफ टाइम फॉर दैट, बिकॉज एक तो मैं जॉब पे जा रही हूँ, देन आई कम बैक, आई क्रिएट कॉन्टेंट, तो इतना नहीं हो पाता है. सेकेंड, मतलब ये तो चलो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, बट वैसे वट आई बिलीव you must know is that living independently comes with a cost. It comes with a bill. So yes, money is going to be a thing, because you know, I'm paying my own rent. मेरा आना जाना, everything I am sponsoring myself, and it's been years. ठीक है, so every time you will buy something ना, आपको जाके देखना पड़ेगा कि can I afford this, can I buy this, एंड यू नो यू विल हैव अ बजट कि ठीक है मैं इसको ऐसे स्पेंड करूँ, ये करूँ, ग्रोसरीज लेना है, रेंट भरना है. सैलरी आती है, सैलरी आते ही चली जाती है, बिकॉज यू नो कि आपका रेंट इतना है, अभी आप ये सामान लोगे, एंड यू नो यही सारी चीज़ें मैं विश लिस्ट कर रखी. नाउ बिकॉज यू आर यंग, यू विल स्पेंड ऑन योरसेल्फ एज वेल, विच इज समथिंग वेरी ग्रेट. आप जब तक यंग हैं एंड यू डोंट नो, यू आर नॉट एक्चुअली प्लानिंग समथिंग कि अच्छा ठीक है अभी शादी है, अभी बच्चे, तो तब तक आप खुद पे स्पेंड करें, क्योंकि फिर एक टाइम के बाद शायद सब खुद पे स्पेंड ना कर सके. ठीक है, यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू विल हैव सो मेनी रिलेटिव्स कि आपको शायद से उनके यहाँ जाना वाना, गिफ्ट्स, इन सब में ही टाइम निकल जाएगा. सो आई कंप्लीटली बिलीव कि अगर मैं अभी, मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं अपने आप पे खुला खर्चा करती हूँ. बट I'd be lying if I say कि मैं नहीं सोचती बिल्कुल भी कि oh my god, मेरा बैंक बैलेंस जा रहा है. Of course, whenever there's a deduction, मुझे ऐसा मेरे
मेरा ऐसे दिल निकल आता है ना बाहर सोच के कि ओ शिट ओ मैन, ये तो गया। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपके पेरेंट्स वो सो इजी। मतलब घर पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं भाई, ये टूट गया, वो टूट गया, प्लम्बर का काम, कभी इलेक्ट्रिशियन का काम, कभी मतलब कुछ भी चीज़ खराब, लाइट खराब हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगी। मेरे अभी भी रूम में एक लाइट है जो मैंने एक्चुअली चेंज कर दी थी, वो अभी तक नहीं निकली है। मैं एक्चुअली मेरा हमारा टाइम मैच नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिशियन जिस टाइम पे अवेलेबल रहता है मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहती हूँ, या फिर मैं इस टाइम पे, अभी वो इस वीकेंड आना चाह रहे थे, मैं इस वीकेंड थी नहीं। सो ऐसी करके चीज़ें डिले हो जाना। देवर टाइम्स मुझे कारपेंटर की जरूरत थी, मैं आई हूँ, ठीक है, मेरा डोर बारिश की वजह से पूरा फूल गया। एंड थिंक ऑफ इट, मैं घर से ट्रैवल करके आ रही हूँ, ठीक है, और मेरा डोर नहीं लग रहा है, मेरा डोर लिटरली बंद नहीं हो रहा है। नाउ आई नो कि मेरे से पहले भी हो गया था कि डोर एक्चुअली थोड़ा फूल गया था बरसात में। बस सोचना, मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ, आई एम लिटरली वेरी वेरी टायर्ड, दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा है। देन आई एक्चुअली मतलब मैंने ऐसे करके थोड़ा सोफ़ा खिसकाया, बिकॉज रात का टाइम था, कारपेंटर नहीं आ पा रहा था। मॉर्निंग में जाके जब मैंने कारपेंटर को सबसे पहले, मतलब सबसे पहले अपने प्रायोरिटी में बुक करा, उसको बुलाया, दरवाज़ा सही करवाया। ये तो सिर्फ एक छोटी चीज़ है, एक कभी लॉक कुछ करते हुए कुछ टूट जाना, किचन में कुछ काम करे हो, कांच गिर जाएगा, टूट जाएगा, उसको धो, एंड यू आर नेवर, मतलब एंड इट्स नॉट लाइक कि आपका मूड हमेशा ही अच्छा है, ठीक है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर इन अ मूड कि आपको लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ दुनिया का सारा, एंड बट देयर आर टाइम्स जब मेरा एक्चुअली कुछ भी करने का मन नहीं होता है। मुझे लगता है नहीं, मुझे खाना भी नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं बनाना है, मुझे खाना भी नहीं है। तो फिर तब आपको लगेगा कि शायद से कोई होता जो खाना खिलाए, शायद से जो होता जो कन्विंस करता, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर इन अ सेटअप कि यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे फ्रेंड्स है, अब ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हो, बीमार भी हो तो भी चलेगा, समझ रहे हो। तो अच्छा, कमिंग फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव, येस यू विल लर्न अबाउट द मनी, यू विल लर्न दैट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले पहले आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। आप लोगों को सब्जी वाले से बार्गेनिंग करना नहीं आएगा, आप लोगों को कहाँ पे भैया लोगों को कैसे बात करनी है वो समझ में नहीं आएगा, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। वो मैं अभी तक सीख ही रही हूँ। बार्गेनिंग स्किल्स मेरी वैसे ही बहुत कम सी हैं, मैं 10 रुपए का बार्गेन करती हूँ, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। So the gist of the financial state is that you are constantly calculating in the back of your mind all the things कि ठीक है मैंने ये किया वो किया, and this is something which you will learn, and there will be times शायद से आपकी पॉकेट पूरी खाली होगी, ठीक है, and that's when you will learn कि ठीक है how I have to manage my finances, and now if I wanna buy something and if there's something which is going to launch और मुझे वो चाहिए, I'll start saving, and then I understand कि कैसे कैसे सेविंग करनी है, कहाँ पे मुझे अपने थोड़ा हाई टाइट रखना है, चीज़ें करनी है, and maybe then you will realize that how your parents did it. Now the next, the most important I believe is the emotional part, because when you live alone you become everything. आप खुद के थेरेपिस्ट हैं, आप खुद के इमोशनल सपोर्ट हैं, आप खुद के शेफ हैं, आप खुद की मेड हैं, यू आर एवरीथिंग लिटरली। घर पे अकेले है ना, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सिक, दैट्स व्हेन यू मिस योर पेरेंट्स द मोस्ट, दैट्स व्हेन यू मिस योर लव वंस द मोस्ट, क्योंकि जब आप बीमार है ना, मतलब दैट्स व्हेन यू फील नॉट ओनली अलोन बट लोनली, क्योंकि तब वहाँ पे कोई नहीं होता है। एंड यू नो बीइंग अ अडल्ट, यू नो बहुत बार ऐसा चीज़ें, आप बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन यू फील सो डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन फॉर नो रीज़न, और उस टाइम पे आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। मे बी कुछ करना चाहते भी हो, आप चाहते हो कि कोई आपके लिए करे, बट वो आपके पास है नहीं कोई भी। सो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई बिलीव व्हेन यू लिव अलोन, दैट आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपको शांति जो आप और दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, उस टाइम पे आपको शांति बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, एंड यू लिटरली फील लाइक कि इट्स बेटर टू लिव विद फैमिली, जो आप शोर हो रहा होगा, बट ये जो साइलेंस इज, दिस इज नॉट समथिंग आई एम एडमायरिंग दिस टाइम, बट येस इट ऑल्सो मेड मी ग्रो, इट मेड मी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। लिविंग अलोन मेड मी रिस्पॉन्सिबल इन सेंस, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें शायद से मुझे लाइफ में कभी आती नहीं, क्योंकि दे वो ऑलवेज समवन जो मेरे लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, बट नाउ व्हेन आई एम लिविंग अलोन मुझे खुद का पता है कि हाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नाउ बीइंग समवन जो अपने एक सिटी में इंडिपेंडेंटली रह रही है, अकेले रह रही है, इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ, तो आई अंडरस्टैंड कि मुझे लॉक लगाना है, कैसे लगाना है, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई एक्चुअली फॉरगेट कि मुझे लॉक लगाना होता है, समझ रहे हो, मतलब ये गलती मैंने पास में करी है, एंड जब मैं कभी रियलाइज़ करती हूँ कि शिट, ये तो मैं भूल ही गई थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाउ डिपेंडेंट आई वाज ऑन पीपल, मतलब अपने पेरेंट्स पे कितनी ज़्यादा थी, अपने फ्रेंड्स पे कितनी ज़्यादा थी, बिकॉज नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं घर से जा रही हूँ, बाहर फ्रिज ऑफ करना, हर स्विच ऑफ करना, गैस ऑफ करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखते हो, एंड यू फील योर यू नो यू नाउ
now is the time when you can relate yourself to your mother. Now is the time when you can relate yourself to your father and everyone. Because you're actually everyone. You are your own mother, you are your own father, you are your own sister, brother, and everyone. And especially when you are not emotionally good, not feeling very well, feeling drained, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप बेड में पड़ोगे, रोगे धोगे और सो जाओगे, ठीक है. एंड दैट्स व्हाट यू डू एंड आई बिलीव इट इज ओके. मतलब उस टाइम पे आपको लगेगा बहुत ही लो, बट ठीक है यार. मतलब if you have to choose, that's what you have to actually choose. Yes, coming to the main point, कि तब आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ें ज़्यादा एंजॉय करें. नाउ एक टाइम शायद से ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होने लग जाए. दैट्स व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. यू कांट लिव अलोन. बट इफ यू आस्क मी, आई विल नेवर एवर ट्रेड this for anything, because freedom is beautiful and I love freedom, but yes, just know that it comes with a mix. ठीक है, मतलब उसमें खुद एक बहुत बड़ा मिक्सचर है. बट येस, इफ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज चूज टू लिव इंडिपेंडेंटली. आई विल ऑलवेज चूज कि यस, आई शुड हैव दैट फ्रीडम. आई शुड हैव द फ्रीडम टू डांस अलोन. घर पे मैं कैसे भी ड्रेस पहनूँ, घर पे मैं कैसे भी डांस करूँ, घर पे मैं कैसे भी खाऊँ, बातें करूँ, चिल्लाऊँ, किसी से भी. आई डोंट हैव टू थिंक फॉर अ सिंगल सेकेंड की क्या है, बिकॉज आई एम लिविंग ऑन माई ओन टर्म्स एंड दिस इज व्हाट आई लव. Now, मतलब in the past month, it was not a really great month, and this one is coming out because last month में I had the vacation और मैं घर से just आई थी. So that 1 week I was feeling so emotionally drained कि मुझे ऐसा घर का सा लग रहा. Home sickness was so real, and of course पता नहीं for some reason I was also very feeling mentally tired. तो मतलब मेरा बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं था, and I was very, I just wanted to avoid the situation of living alone. ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर. आज फिर मुझे ठीक फील हो रहा है, तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट शेयर इट विद यू. बट मतलब ऐसे ही होता है, जस्ट फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. सो इफ यू आर समवन हु इज एक्चुअली प्लानिंग टू लिव इंडिपेंडेंटली, हु इज एक्चुअली प्लानिंग टू मूव टू अ न्यू सिटी, तो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे. नए फ्रेंड्स शायद ना भी बने, बट यू हैव टू लिव एनी वेज एंड यू हैव टू चूज योर ओन हैप्पीनेस. अगर आपको घर पे रह के अच्छा लग रहा है, देन गो लिव विद योर पेरेंट्स. अगर आपको घर पे रह के अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको कुछ और एक्सपीरियंस करना है, देन प्लीज गो आउट एंड live on your own terms, live independently, feel that freedom. But yes, I always wish कि हर किसी को लाइफ में एक बार तो पक्का अकेले रहने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. Not for all the goods but for the bads as well. Because घर घर पे रह के हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग अस, ये तो सब कुछ कर रहे हैं. बट शायद से तब आपको रियलाइज होगा कि that invisible efforts which goes behind everything they do, तब आपको शायद से लगेगा कि हाँ यार, मतलब बहुत कुछ होता है जो मुझे शायद से दिख भी नहीं रहा है. समझ रहे हो? तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रे कि हर किसी को, मतलब देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो हमेशा से घर पे ही रहे, बट आई रियली विश कि उनको एक बार अपॉर्चुनिटी मिली दैट कि वो कहीं बाहर रहें, अकेले रहें. बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो घर पे रह रहे हैं, दे ऑलवेज कीप क्रेविंग अबाउट द फैक्ट कि अरे यार घर पे तो ये होता है, तो अपनी मर्जी से रह रही है, विच इज़ ऑब्वियसली फाइन एंड आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. बट ठीक है, मतलब इट्स अ मिक्स एज आई हैव मेंशन. तो ठीक है, मतलब अब सारे मज़े सहे हैं, तो कुछ दुख भी आपस में अकेले ही सहने पड़ेंगे. दैट्स व्हाट इट इज़. बट येस, प्लीज़ इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लिव वंस, to get, if you ever get the opportunity कि आपको सिर्फ खुद से रहना है and you have to do everything on your own, and अकेले आप घर पे रहेंगे, then please go and live the life so that you realize कि कितने अच्छी चीज़ें होती हैं, कितनी बुरी चीज़ें होती हैं, and you will become so responsible. मैं घर की छोटी बेटी हूँ, ठीक है, आई एम अ पैम्पर्ड चाइल्ड. मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं आता. मैं घर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल आराम रानियों की तरह रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता. मुझे सब कुछ मेरे लिए वो सब कुछ करें, ठीक है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे सब खुद करना है, सब चीज़ें मैं खुद ही कर रही हूँ, खुद का ध्यान मैं खुद रख रही हूँ. मुझे पता है मेरे को कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, मुझे पता है मेरे ग्रोसरीज को कैसे लेना है, दाल कौन सी मैं अब जाके सीख रही हूँ. बट मैं सीख रही हूँ ना, शायद से मैं घर रहती हूँ तो मैं कभी नहीं सीखती, क्योंकि मम्मी थे, पापा थे, एवरीबडी वॉज डूइंग एवरीथिंग मतलब फॉर मी. वो कर ही रहे थे. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के काम, ये टच नहीं करना है, कब करना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करना है. बिकॉज हर टाइम आपके पास, इवन नो मैटर कितना पैसा आपके पास है, हर टाइम हर कोई अवेलेबल नहीं होगा. तो कुछ चीज़ें आप यूट्यूब करना सीखते हैं. यूट्यूब पे छोटी मोटी ट्रिक्स आप सोचते होंगे ना, ये कौन देखता है, आप देखोगे वो सब कुछ. समझ रहे हो? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब
बहुत मजा आता है वैसे अकेले रहने में, मतलब कुछ भी कहो, सच्चा ड्रामा। अब ना मैंने लुक बैक कि ठीक है मेरा वो बड़ा बुरा सा टाइम में ये करी थी, वो मेरे को अभी हंसी आती है कि अच्छा मैंने ऐसे भी था, मतलब तो मुझे अब हंसी आती है, बट ठीक है। एंड योर बेस्ट फ्रेंड कौन होगा आपको पता है जब आप अकेले रहते हैं? म्यूजिक, स्पीकर, हैव अ स्पीकर, डीजे बजाओ जब अकेले रह रहे हो। दैट इज समथिंग विच विल गिव यू कंपेनियनशिप, दैट इज योर स्पीकर इन द म्यूजिक, लिटरली। अगर आप अकेले रहते हैं, यू मस्ट रिलेट कि गाने कितना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम आपका होते हैं। मैं दिन भर सिर्फ गाने चलाती हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, बिकॉज उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई है रूम पे, समझ रहे हो कि हाँ मतलब जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे साथ है, मैं भी गाना गा रही हूँ, वी आर एंजॉइंग टुगेदर। सो गाने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर पे इन्वेस्ट करना प्लीज़, हैव अ गुड स्पीकर और गाने चलाओ, मस्त इंजॉय करो, गाओ, डांस करो, खाना पीना खाओ, गंदगी मचाओ, साफ करो क्योंकि खुद ही साफ करनी, सब कुछ करो। बट येस, वंस इन ए लाइफ टाइम रहना पक्का, that's what I wanted to say. But if you are someone who's already living alone and you're feeling tired, overwhelmed and not good, then trust me, it is okay, it is completely okay. You're not failing, you're just adulting, that's what I say. Kyunki you have to understand that this is something very normal. You go and ask anyone who's living alone, you'll understand that it's not a bed of roses. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आएगा, एंड ये तो बस स्टार्टिंग है, मतलब बहुत कुछ होगा, बट this is something very interesting. It's a very, very interesting journey to live alone. And I bet that this is going to be one of the best part of your life. So, yeah, that's for today's video. And I really hope that this was helpful to all my lovely friends. And if it was, please comment down, give your feedback. If you are someone who is planning to live alone or someone who is already living alone like me, then please do share your experience as well. And if you could relate, I'm happy. And I will love if you will drop a feedback, if you will drop your comment, if you will drop your support and your love. So yeah, waiting for it. And yeah, tada, bye bye, see you in my next video. And yeah, done, bye bye.